Hello students, today I am going to teach you part 3rd of your chapter The Kingdom of Fools. In the previous class I have already teach you that it was the story of a state where nobody was very intelligent, and when the wall had fallen, a thief had died, and at the time the king called the owner of the house, and it was the merchant. And after it there is a long series, they blame to each other. For example, the merchant blame the bricklayers, and the bricklayer blame the woman, and the woman at last blame to the goldsmith. So what happened in the next we study in this part. Okay, let us start. The goldsmith said that the merchant was the same merchant whose house wall had fallen down. Justice has come full circle means that the story ended at the same person from whom it had started. The thief died under the wall of the same merchant whose jewelry this goldsmith was making. Once again the merchant was called. He was crying, and he knew that the king was foolish and he would give him death sentence. He said that it was not he who had ordered the jewelry, but it was his father. His father was dead and it was none of his fault. होता ये है कि गोल्डस्मिथ बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, और आप जो भी न्याय करेंगे वो आपका न्याय मान्य होगा। और वो बोलता है कि नहीं, मैंने एक किसी व्यापारी का मेरा ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर आया था, तो मैं उस ऑर्डर को पूरा कर रहा था। फिर बाद में जब उस व्यापारी को बुलाया जाता है तो वो भी बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं थी, वो ऑर्डर तो मेरे पिता ने दिया था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड गेव द डिसीजन दैट द मर्चेंट्स फादर वाज मर्डरर. द thief died because of him, as the merchant father was not alive and some had to be punished for the crime. So he said that the merchant son, who had inherited everything from his father, would have to take the punishment for his wrongdoing as well. He added that when he had seen the merchant for the first time, at that moment he had a feeling that he was the culprit. The king announced that now the merchant would have to die. अब जो राजा होता है वो इतनी बात सुनकर अपने मिनिस्टर से थोड़ा सा डिस्कशन करता है, और वो बोलता है कि ठीक है, इसके जो पिता थे वो मर्डरर है, लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद ये जो मर्चेंट है, ये वाला मर्चेंट ही उनकी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी है। तो जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा हम उसके पिता की जगह इसी को देंगे, और फिर वो और उसकी जगह इसी व्यापारी को वो अनाउंस कर देते हैं कि इसी व्यापारी को मरना होगा। So when this new weapon was getting ready, the merchant felt that the merchant was very thin and he could not be executed in this way. He told this to the king and king got worried. और जब व्यापारी को लगा कि वो तो फंस गया है, तो उसने एक नया उपाय सोचा। उसने बोला कि मैं बहुत दुबला पतला हूँ और मुझे इस तरह की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। तो राजा थोड़ा सा चिंतित हो गया. The king got an idea that should catch hold a man who fat enough to be executed with the stake. The merchant would not be put to death because he was too thin to be executed with a stake. They thought of punishing another person instead of the merchant, one who fat enough to be executed with a stake. बाद में राजा जब सोचते हैं, तो सोचने के बाद फिर वो ये डिसीज़न लेते हैं कि नहीं, ठीक, ये मर्चेंट ठीक बोल रहा है कि ये बहुत दुबला पतला है, इसको हमको फांसी नहीं दी जानी चाहिए। तो बाद में वो बोलते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो थोड़ा फैट हो, थोड़ा मोटा हो, और जो इसकी जगह जो मोटा व्यक्ति आएगा, फांसी की सज़ा उसी को दी जाएगी। Finally, the king sent his servant around the kingdom to look for a man who was fat enough to be executed with the stake. They found the guru's disciple who had become very fat because of his overeating. और फाइनली होता ये है कि राजा अपने जो सर्वेंट्स होते हैं उनको अपने किंगडम में भेजता है कि जाओ कि इसी ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो जिसको हम इस स्टैक पे लगा सकें। और वो लोग किसको ढूंढ के लाते हैं कि वो जो गुरु का जो शिष्य था, जिसको बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी, वो बहुत मोटा था, उसको वो लोग लेकर आते हैं। द डिसिपल सेड दैट ही वॉज अ सन्यासी, ही हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, ही वॉज इनोसेंट, देन वाई वर दे taking him? The king's servant said that he was innocent, but they were ordered to catch hold of a fat man who could be executed with the stake, and he was fit for it, and that is why they were taking him along.
और जो डिसिपल होता है वो बोलता है मैं एक सन्यासी हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं बहुत निर्दोष हूँ, आप मुझे मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। तो वो जो राजा के सर्वेंट होते हैं वो बताते हैं कि ठीक है, हमको एक ऐसे व्यक्ति को लाने को बोला गया जो कि थोड़ा मोटा हो, जिसको हम फांसी की सज़ा दे सकें, और तुम उसके लिए बिल्कुल ठीक हो, इसीलिए हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। द डिसिपल इज रिमाइंडेड ऑफ हिज गुरु. Guru, who was a wise man, had told him that it was a city of fools and they could harm him. Now they were taking him along to execute him. और जब ये हो गया तो जो शिष्य था वो अपने गुरु को याद करता है, और याद करके वो सोचता है कि वो गुरु उसका बुद्धिमान था, कि उसने उसको जाने को बोला, उसने मना कर दिया, उसने कहा था गुरु ने कि ये जो सिटी है ये मूर्खों की सिटी है और इससे तुम्हें कभी भी नुकसान हो सकता है, और फिर वो लोग उसको अपने साथ ले जाते हैं। The helpless disciple prayed to his guru and asked him to come to his rescue. The guru could visualize the disciple's message due to his magical power. He could see everything. He could see the future, present, and the past. He could see everything in the vision. और फिर जो वो जो हेल्पलेस जो शिष्य होता है, असहाय जो शिष्य होता है, वो अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि आप आइए और मुझे बचाइए। और उसके जो गुरु, क्योंकि उसके अंदर मैजिकल पावर था, वो हर चीज़ देख सकते थे, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, उनको सब नज़र आता था, तो वो सब कुछ देख लेते हैं। द गुरु अराइव्ड देयर टू सेव हिज डिसिपल. द डिसिपल वॉज ट्रैप्ड इन ए डिफिकल्टी. देयर वर अबाउट टू एग्जीक्यूट हिम ऑल्दो ही हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. और गुरु वहाँ पर अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुँचते हैं। शिष्य जो था वो तो जाल में फंसी गया था, और लगभग अब वो उसको फांसी देने ही जा रहे थे, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। As the Guru met his disciple, he scolded him because he did not obey him and stayed back. He whispered something in his ear. सबसे पहले तो गुरु जो है वो अपने शिष्य को डांटते हैं, और उसको डांटकर उसको बोलते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी और तुम यहाँ रुक गए, और फिर वो उसके कान में कुछ बोलते हैं। The Guru tried to trap the king in his word. He asked him who was greater between a guru and a disciple. The king replied that of course the guru was greater. The guru said that for this reason the king must execute him before executing his disciple. When the disciple heard his guru's word, he started shouting that he wanted to die first. अब जो गुरु थे वो गुरु राजा को उन्हीं के शब्दों में फंसाना चाहते थे। तो गुरु ने राजा से पूछा कि अब आप ये बताइए कि गुरु और शिष्य दोनों में बड़ा कौन होता है, महान कौन है। राजा उत्तर देते हैं कि ऑफ कोर्स जो गुरु है वो गुरु महान है। गुरु बोलता है कि बस यही रीज़न है कि वो चाहते हैं कि उनको पहले फांसी की सज़ा दी जाए। और जब शिष्य इस बात को सुनता है तो वो ज़ोर से ही स्टार्टेड शाउटिंग, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बोलता है नहीं, पहले उसको मरना है। When the guru and disciple started arguing that who would die first, the king got confused. He asked the guru that why did he want to die. They had caught the disciple because he was fat and they wanted a fat man who would be executed with the stake. जो गुरु है और गुरु और जो शिष्य जब आर्ग्यूइंग करते रहते हैं कि पहले कौन मरेगा, तो राजा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, और राजा उस गुरु को पूछते हैं कि तुम क्यों मरना चाहते हो, हम तो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाए थे जो कि मोटा हो, जिसको हम फांसी की सज़ा दे सकें। The Guru refused to reply. He said that he wanted to die before his disciple died. The king felt that there was some mystery behind it. The Guru wanted to die before his disciple and was so eager to die. There must be some reason behind it. The Guru asked the king to promise him that he execute him first if he told him the secret about why he wanted to be executed first. अब जो गुरु होता है वो कुछ जवाब देने से मना कर देता है राजा को, और वो बोलता है कि वो अपने शिष्य से बस पहले मरना चाहता है। राजा को महसूस होता है कि नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ रहस्य है जो ये गुरु अपने शिष्य से पहले मरने के लिए इतना उत्सुक है, और फिर वो उसके पीछे का कारण पूछते हैं। तो गुरु जो होता है वो राजा से बोलता है कि ठीक है, मैं आपको सारा सीक्रेट बता दूंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि जब आप ये सारी बात जान लोगे तो उसको जानने के बाद आप पहले मुझे ही सजा दोगे। द किंग प्रॉमिस दैट ही वुड एग्जीक्यूट हिम फर्स्ट. देन द गुरु टुक द किंग असाइड एंड स्लोली टोल्ड हिम दैट दे हैड रोम्ड अराउंड द whole world and had not seen a city and a king like him. He added that the stake which they would use to kill the disciple was the stake of justice. वो बोलते हैं, वो जो राजा है वो उसको प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है, वो उसी को पहले सजा देंगे। तो गुरु जो होता है वो राजा को एक तरफ ले जाता है और उनको धीरे से बोलता है कि हम दोनों ने पूरा संसार घूमा, लेकिन हमने एक भी ऐसी सिटी नहीं देखी, और ना ही आपके जैसा कोई राजा देखा है। और उसने बोला कि वो जो फांसी का जो आप फंदा लेके आए हैं, जो स्टैक आप लेके आए हैं, वो कोई साधारण स्टैक नहीं है, वो तो न्याय का स्टैक है। एज इट वॉज न्यू
इट हैड नॉट किल्ड एनी क्रिमिनल, क्योंकि अभी तक वो फांसी का फंदा बिल्कुल नया है और उस पर किसी अपराधी को सज़ा नहीं दी गई है। Further, he said that one who would die first on his stake would reborn as the king of the kingdom. The Guru added that he was tired of the life of a sannyasi. He and his disciple wanted to live the life of king and the minister. So he says that the king executed him first so that he is reborn as the king, and after him his disciple he executed so that he is reborn as a minister. फिर वो बोलता है कि जो गुरु है वो गुरु बोलते हैं कि और एक चीज़ और है कि जो इस फंदे पे सबसे पहले मरेगा उसका पुनर्जन्म होगा, और उसका जो पुनर्जन्म होगा वो राजा की तरह होगा। उसने बोला कि अब मैं और मेरा शिष्य दोनों सन्यासी के जीवन से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और अब हम चाहते हैं कि पहले आप मुझे फांसी दोगे तो मेरा जो रीबॉर्न होगा वो एज ए किंग होगा, और मेरे बाद अगर आप मेरे डिसिपल को फांसी दोगे तो वो जो रीबॉर्न होगा वो एज ए मिनिस्टर होगा। After listening to the Guru, the king was in deep thought. He did not want that in the next life his kingdom be snatched away from him. He discussed this with his minister. He added that the person was a holy man, and holy men did not speak lies. He says that they should die first so that they are reborn as king and minister of the kingdom. उसके बाद फिर वो अपने मिनिस्टर को, जो राजा हैं, ये पूरी बात सुनने के बाद वो थोड़ा सोचते हैं, फिर अपने मिनिस्टर को बुलाते हैं और उससे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो बोलते हैं कि वो नहीं चाहता कि उसका जो राज्य है उससे नेक्स्ट जो लाइफ होगी, नेक्स्ट लाइफ में उससे वो छीन लिया जाए। और वो बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है बहुत ही होली पर्सन है, और होली पर्सन कभी झूठ नहीं बोलते। तो राजा बोलते हैं कि पहले हमें मरना चाहिए ताकि हम वापस से किंग और मिनिस्टर के जैसे रिबॉर्न हो सकें। The king told his executioners that he would send the criminals at night. They should be careful and not make any mistake. At night, the king and his minister went to the prison where the Guru and his disciple were kept. They wore the cloth of the Guru and his disciple so that they resembled them. As it was told to the servants, they came and took them along to put them into the stake for execution. In this way, with his intelligence, the Guru was able to execute his foolish king and his foolish minister. अब होता ये है कि जो राजा है वो जो फांसी की जो सज़ा देते हैं उनको वो बोलते हैं कि ठीक है, हम रात में क्रिमिनल को भेजेंगे और तुम उनको फांसी की सज़ा देने में कोई गलती मत करना। और रात में राजा और जो उसके मिनिस्टर हैं वो जेल में जाते हैं जहाँ पर उस गुरु को और उस शिष्य को रखा गया था। वो उनसे उनके कपड़े एक्सचेंज करते हैं ताकि वो उन्हीं के जैसे लगें। उसके बाद सर्वेंट्स आते हैं और उनको अपने साथ लेके जहाँ पर फांसी देनी होती वहाँ पर लेके चले जाते हैं। इस तरह से जो गुरु की चालाकी से जो राजा होता है, वो राजा और उसका जो मंत्री है, उनको फांसी की सज़ा फिर हो जाती है। When the dead bodies of the king and his minister were taken away to be thrown, the people trembled to see the dead bodies of their king and his minister. और बाद में जो उनकी जो डेड बॉडी को जब बाहर निकाला जाता है तो वहाँ की जो जनता होती है वो ट्रम्बल्ड, वो डर जाती है, वो लोग कांपने लगते हैं उनके राजा और मिनिस्टर की बॉडी को देख के। एवरीवन इन द किंगडम वाज mourning the death of their king and his minister. In the morning, some people thought of the Guru and his disciple and felt that they should go to them. As the Guru and his disciple were planning to leave the kingdom, the people stopped them. अब होता ये है कि सारे के सारे लोग अपने राजा और उसके मिनिस्टर के मरने का शोक मनाते हैं, और जैसे ही सुबह होती है उनमें से कुछ लोग सोचते हैं कि हमको गुरु और शिष्य के पास चलना चाहिए। और जैसे ही गुरु और शिष्य ने जैसा कि प्लानिंग बनाया था कि वो उस राज्य को छोड़कर भाग जाएंगे, तभी लोग उसको जो लोग हैं वहाँ के लोग उनको रोक देते हैं। द पीपल ऑफ द किंगडम थॉट दैट दे नीडेड अ किंग एंड अ मिनिस्टर and so they requested the Guru and his disciple to the new king and minister of the kingdom. The disciple agreed quickly, but it took some time to make the Guru agree upon this. उसके बाद जो साम्राज्य के लोग होते हैं उनको लगता है कि उनका कोई ना कोई राजा और मिनिस्टर तो होना चाहिए, इसीलिए वो उस गुरु को और उस शिष्य को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे राजा और हमारे मंत्री हमारे साम्राज्य के बन जाइए। तो जो शिष्य होता है वो तो तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन जो गुरु होता है उसको एग्री होने में थोड़ा समय लगता है। So the Guru agreed to be the king of the kingdom, but on the condition that from then everyone would work in the day and sleep at night. Also the cost of things would very low and not be one dudu for anything
as was the system earlier. It would be like another place where everything had different rates. Finally, the Guru converted the kingdom of fools into a normal kingdom. अब होता ये कि एट लास्ट में जो गुरु होते हैं वो गुरु भी राजा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी दो कंडीशंस रखते हैं. पहली कंडीशंस तो वो ये रखते हैं, पहली कंडीशन उनकी ये होती है, पहली शर्त ये होती है कि कोई भी अब दिन में सोएगा नहीं, सब लोग दिन में काम करेंगे और रात में जगेंगे. और दूसरी शर्त उनकी ये होती है कि वहाँ पर हर सामान बड़ा सस्ता था. वन डडू के अंदर वो लोग अपनी सारी चीज़ें, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, सब उनको बस उतने ही प्राइस में ख़रीदना होता था. तो उन्होंने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, जैसे दूसरी जगह पर हर सामान का डिफरेंट रेट होता है, तो उनके जो सिटी है उनकी सिटी में भी ऐसा होगा. और अंत में क्या होता है कि जो गुरु होते हैं वो पूरे जो उनका जो किंगडम होता है, पूरे जो कि किंगडम ऑफ फूल्स का था, तो किंगडम और फूल्स को वो किस में बदलते हैं, एक नॉर्मल किंगडम में बदलते हैं. मतलब जो मूर्खों का राज्य जो कहलाता था वो अब एक नॉर्मल लोगों का साम्राज्य कहलाता है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द part 3rd and the end of your story. May I hope you understand the chapter. Very interesting chapter. Now you can see here are some questions which you have to solve in your copy. If you have any problem in the explanation of the part 1, part 2 and part 3, or in the solving the questions also, you can ask me. Till then, goodbye.